السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 29 سورۃ المزمل۔ تلاوت ہوگی، آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. We are studying Para 29, Surat Al-Muzammil. مزمل کی میننگ ہے کپڑا اوڑھ کر، لپیٹ کر، لیٹے ہوئے۔ کس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے انداز میں پکار رہے ہیں کہ یا ایھا المزمل۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، جب جبریل امین پہلی بار آئے اور فرمایا اقرا، اور جب ان کو دبوچا تھا، گلے سے لگایا تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا تھا تو جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر، اور پورا آسمان ایسٹ ٹو ویسٹ کور ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہو چکی تھی، اور وہ کانپنے لگے تھے، تھر تھرا رہے تھے، اور وہ اپنے گھر پہنچے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور ان سے کیا کہا؟ زملونی زملونی، مجھے کیا کرو، مجھے کپڑا اڑا دو، بلینکٹ ڈال دو میرے اوپر، کیونکہ وہ ان کو بہت ٹھنڈ لگ گئی تھی اور وہ کانپ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے فرشتے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
آپ کھڑے رہیے. اور یہ قم کھڑے رہنے کا مطلب ہے نماز میں قیام کرنا. کب نماز میں قیام کیجیے؟ اللیل. تو دیکھیے ابھی تو یہ شروع کی آیتیں ہیں، شروع کے دور کی وہی نازل ہو رہی ہے. ابھی تک 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ دن میں 5 وقت کی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی. تو یہ والی جو نماز ہے قم اللیل، کہ آپ قیام اللیل کے لیے، رات کی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم کیا تھا؟ فرض تھا، لازم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری رات نہیں، الا قلیلا، سوائے تھوڑی سی رات چھوڑ دیجیے. یعنی تھوڑا سا آپ سو جائیے اور زیادہ تر آپ جاگ کر نماز پڑھیے. پھر فرمایا آیت 3 میں نصفہو، یا تو آدھی رات. وہ کس کے لیے آیا؟ رات کے. نصف یعنی آدھی. یا تو آپ آدھی رات نماز میں گزارے، او یا ایکسکیوز می اوین کس، یا آپ کچھ کم کر دیجئے، منہو، اس سے. کس سے؟ آدھی رات، یا پھر آدھی رات سے تھوڑا کم کر دیجئے، قلیلا یعنی تھوڑا. او زد علیہ، یا پھر آپ تھوڑا سا زیادہ کر دیجئے آدھی رات سے زیادہ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور آپ نماز میں کیا پڑھیے؟ قرآن پڑھیے. نماز میں قرآن کی تلاوت کیجیے. کیسے کیجیے؟ رتل القرآن ترتیلا، بالکل وضاحت کے ساتھ، صاف صاف آہستہ انداز میں قرآن کی تلاوت کیجیے نماز میں بھی. تو نماز کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن کب پڑھنا ہے؟ رات کی نماز میں. کیسے پڑھنا ہے؟ ترتیل کے ساتھ، آہستہ آہستہ خوبصورت انداز میں، ایک ایک حرف بالکل صاف کلیئر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 5 میں، دیکھیں یہاں تک ہم کر چکے تھے، آگے بڑھیں گے. آیت 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا سنلقی، انا بے شک ہم. کون ہم؟ اللہ تعالیٰ. سنلقی، س یعنی ویری سون، بہت جلد. نو یعنی ہم نازل فرمائیں گے، ہم ڈالیں گے، علیک آپ پر، قولاً ثقیلا، ایک قول، وہی ثقیلا جو بہت بھاری، بہت عظمت والی. یہ قرآن کی وہی آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی. قرآن اللہ کا کلام بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور عمل میں بھی یہ بہت بھاری کتاب ہے. اس کے احکام بھی بڑے حکمت والے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما دے کہ یہ قرآن کیسا ہے، یہ قول بہت بھاری ہے، تو ہم کو کیسے لگتا ہے، ہماری کیا فیلنگ ہے اس قرآن کے ساتھ؟ کہ کیا قرآن آسان ہے یا مشکل ہے یا بھاری ہے یا ہلکا ہے؟ ہماری کیا فیلنگ ہے اس کے ساتھ؟ کیسے ریاکشن ہے آپ کی؟ بتائیے. ہاؤ ڈو یو فائنڈ قرآن؟ ایزی اور ڈیفیکلٹ، لائٹ اور ہیوی؟ بولیے. بات جی جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بہت ڈیفیکلٹ تھا. الحمدللہ by learning with by my meaning we are understanding now. الحمدللہ. الحمدللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس کو وقت بھی دینا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا بھی ہے، اور ایفرٹس بھی ڈالنی ہے. کوئی بھی کام آسان ہے کہ آپ نے دنیا میں میتھس پڑھا، اکاؤنٹس پڑھے، آپ نے الگ الگ لینگویجز سیکھی، کوئی بھی کام آسان تھا کیا آپ کے لیے؟ نہیں تھا. ہم اسکول جاتے تھے نا، اسکول میں ہم نے کتنے سارے سبجیکٹس پڑھے. تو اسکول میں کتنے آورز آپ دیتے ہو؟ بتاؤ کتنے گھنٹے آپ اسکول میں گزارے ہو؟ 6 گھنٹے ڈیلی باجی کم ایٹ سے کم لیسٹ. 6 گھنٹے، اور اگر ٹیوشن لے لیا تو اور ایکسٹرا. تو 6 گھنٹے ہم نے جب دیے تب ہم نے کتنے لینگویجز سیکھے، اور ہر روز ڈسپلن کے ساتھ. اسکول کیسے ہوتا ہے؟ ود ڈسپلن. قرآن کے ساتھ ہم لوگ نہ وقت دینا چاہتے ہیں، نہ ڈسپلن، نہ ایفورٹ ڈالنا چاہتے ہیں.
تو پھر ہم کو وہ مشکل ہی لگے گا نا. پھر لینگویج بھی یہ کون سی ہے؟ ہماری لوکل لینگویج نہیں ہے، ہماری ماں کی زبان نہیں ہے، تو ٹائم تو دینا پڑے گا. بٹ ایکسکیوز کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم نے تو انگلش سیکھ لی، وہ کہاں ہماری لوکل لینگویج؟ ہم نے میتھ سیکھے، ہم نے مراٹھی، ہندی، فرینچ، اسپینش، ہم نے اکاؤنٹس، اکنامکس، ہسٹری، جیوگرافی، فزکس، بایو، کیم، کیا کچھ نہیں پڑھا؟ تو اتنے سارے سبجیکٹس کیسے پڑھ لی ہم نے؟ اس میں کیا دینا پڑا ہم کو؟ وقت لگایا ہم نے صرف وقت نہیں لگایا، اور کیا لگایا وہاں پر وہ سب سیکھنے میں؟ وقت کے ساتھ کیا لگایا؟ اور سنا، کنیز؟ ایفرٹس باجی. ایفرٹ کے ساتھ اور کیا لگایا؟ رائٹ. پیسے، اسکول میں جاتے تو فیس بھرتے ہیں نہیں، کتابیں خریدتے ہیں نہیں. اچھا، کیا صرف پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، پھر اس کو لکھتے نہیں ہے؟ تو کسی بھی کتاب کو، لینگویج کو سیکھنے کے لیے اس کو ہم کتنے ڈائمینشنس دیتے ہیں؟ ٹائم، ایفرٹ، منی، ڈسپلن. اس کے بعد اس کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پھر لکھتے بھی ہیں، پھر اس کے ایگزامس بھی دیتے ہیں. تب ایک ایک لیول ہم کراس کر کے KG سے لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے آ جائے ہم کو، یا پھر ہم نے بچپن میں مولانا صاحب سے سیکھ لیے، باجی سے سیکھ لیے، اب ہو گیا، دیٹس اٹ. تو پھر جو یہ کرے گا، جو محنت نہیں کرے گا اس کے لیے تو بہت مشکل ہے، ناٹ ایزی. لیکن جو وقت دے اس کو، اور اسپیشلی کون سا وقت دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، رات کا وقت، جب اور کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو. اور آدھی رات کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے آسمان پر فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو کیوں نہ ہم اس وقت اٹھ کر اللہ سے قرآن مانگے. اسے اللہ تو ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے لیے اس کے احکام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما. کیوں نہیں مانگتے ہم اللہ سے ہدایت اور توفیق اور یہ علم؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی مانگنے والی چیز ہے. ہمارے پاس تو مانگنے کے لیے کیا ہے؟ صرف دنیا، دنیا، دنیا. پھر فرمایا آیت 6 میں، ان ناشیت اللیل، بے شک ناشیت کون سا اٹھنا ہے؟ کل ہم نے پڑھے تھے ناشیت کون نیند سا سے اٹھنا. اٹھنا ہے؟ ہاں، نیند کے بعد کا اٹھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک یہ جو سونا اور سو کر، تھوڑی دیر سو کر اٹھ جانا رات میں، ہی اشد، وہ بہت زیادہ شدید کام ہے، بہت سخت کام ہے، بڑی ہمت چاہیے اس کے لیے، اور بہت ہمارے اندر ڈٹرمینیشن چاہیے، ثابت قدمی چاہیے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھو. وَتَعَوْا، اور یہ کیا کر دیتا ہے؟ یہ رات کا اٹھنا آپ کو اتنا اسٹرانگ بناتا ہے، کیونکہ آپ اپنی خواہش کو کچل کر اٹھتے ہو. تو جو اپنی خواہش کو کچلتا ہو، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس نے کیوں اپنے نفس کی بات نہیں سنی؟ کس کی بات سننے کے لیے اپنی بات نہیں سنی؟ کس کا حکم ماننے کے لیے؟ اللہ کا حکم ماننے کے لیے. تو ہم نے پھر جو شخص تہجد میں اٹھتا ہے، وہ کس کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رائٹ. اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے ہمت والا، سب سے طاقت والا انسان ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ رات میں اٹھ کر قرآن اور نماز پڑھنا، یہ بہت زیادہ درست ہے. قیلا، بات میں، یہ سب سے
बेहतरीन वक्त है कुरान पढ़ने का जब वो दिल में उतर जाए और हमारी नफ्स को कंट्रोल। देखिए, एक नफ्स कंट्रोल हमारी कब होती है? जब हम रोजा रखते हैं। रोजा रात में रखते हैं या दिन में रखते हैं? दिन में बाजी। दिन में रखते हैं रोजा। और एक क्यों स्क्रीन पर क्या है ये बेटा? व्हाट आर यू डूइंग ऑन द स्क्रीन प्लीज? हु इज शेयरिंग द स्क्रीन? बिल्कुल आप स्क्रीन शेयर ना करें। nobody will do, please. if you are not doing, don't do it. हाँ। हाँ, दिन में जब हम रोजा रखते हैं तो दिन में हमको क्या चाहिए होता है? हम जाग रहे होते हैं ना, हमको भूख लगती है बार बार, प्यास लगती है बार बार। तो हम जब रोजा रखते हैं फास्टिंग, उससे हमारा क्या होता है? हम अपने नफ्स पर कैसा कंट्रोल करते हैं? किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। और उससे हम कमजोर बन जाते हैं या और स्ट्रांग बनते हैं? स्ट्रॉन्ग बनते बाजी। हाँ, आपके अंदर वो सलाहियत, वो कैपेसिटी डेवलप होती है कि बगैर खाए पिए भी आप कैसे सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो दिन में हमको चाहिए खाना पीना, अल्लाह ने फरमाया तब रोजा रखो। और जब रात में तुमको नींद आ रही हो, तब तुम अपनी नींद को क्या करो? नींद को तोड़कर उठो और अपने आप को और स्ट्रांग बनाओ। तब तुम्हारे दिल में ये कुरान उतर जाएगा। आप देखिए, पूरा दिन मोबाइल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, फिर उसको चार्ज करने के लिए कब रखते हो? रात में। तो जैसे रात में आपने अपना मोबाइल फोन चार्ज कर लिया, तो दिन में फिर आप उसको बिंदास यूज कर सकते हो। वैसे ये रात की नमाज और रात का कुरान हमें रिचार्ज करता है दिन की इबादत के लिए और दिन के हमारे काम काज के लिए। आयत 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन लक, बेशक आपके लिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिन नहारी, दिन में, दिन के वक्त, सबहन तवीला, सबहन बहुत मसरूफियत है, यू आर वेरी बिजी। कब? दिन में। तवीला, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा वक्त के लिए दिन में आप बिजी हो। क्यों? क्योंकि दिन में आपको मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दुनिया की भी जिम्मेदारियां, दीन की भी जिम्मेदारियां, तबलीग की जिम्मेदारियां, उम्मत की जिम्मेदारियां, फैमिली की, खुद की। तो आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, अल्लाह से कनेक्शन रात में जोड़ना है। आयत 8, वज़्कुरिस्म रब्बिक, और आप जिक्र कीजिए आपके रब के नाम का जिक्र। कितना जिक्र कीजिए और कब कीजिए? देखिए, रात में कुरान पढ़ रहे भी तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है, दुआ कर रहे तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है। और दिन में जितने भी काम हम करते हैं उसके साथ साथ क्या हम अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं? खाना बनाते वक्त क्या हम लोग अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं? कैसे करते हैं अल्लाह का जिक्र खाना बनाते वक्त? बताओ। डू यू कुक? यस बाजी। सो व्हाइल कुकिंग आप क्या सिंपल अस्कार कर सकते हो? बताओ। दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं बाजी, अस्तगफार वेरी पढ़ गुड, सकते हैं। वेरी गुड। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, 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 ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप अपने रब के नाम का जिक्र करते रहिए। इससे क्या होता है? अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक याद रखो कि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। और क्या कीजिए? वह तबत्तल इलैहि तबतीला, वह और तबत्तल, तबत्तल का मतलब क्या होता है? कट जाना।
फोकस करना, तो आप कंप्लीटली फोकस कीजिए इलही तरफ, उसी के, किसकी तरफ डिवोट करना है अपने आप को? अल्लाह की अल्लाह इबादत और जिक्र की तरफ। यस, तब्तीला, पूरा का पूरा कट जाना है। किससे कटना है? दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस। दिन में आप काम भी करो और साथ साथ में अल्लाह का जिक्र करते रहो। तो फिर किससे कटना है? उन दुश्मनों से, उन इस्लाम के दुश्मनों से, अल्लाह के दुश्मनों से, जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, रोकते हैं। आप उनसे दूर हो जाइए और कंप्लीटली अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस कीजिए। ये अल्लाह का हुक्म है। क्या ये हुक्म सिर्फ उनके लिए था? हमारे लिए भी है। हमारे लिए है या नहीं ये हुक्म? है देखिए, बाजी हमारे लिए। इस हुक्म में हमको क्या करना है पता है? इस हुक्म में जैसे हमारे भी दुनिया की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, बैर रखते हैं, बार बार आते हैं और सताते हैं, कभी ताने कसते हैं, कभी बैठकर हमारा वक्त टाइम वेस्ट कर देते हैं, फालतू की मजलिसों में बुलाते हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला ने हमको फरमाया कि तुम ऐसे लोगों से कट जाओ, दूर रहो। हमारी कंपनी हमें चूज करनी है बहुत वाइसली। तो ऐसे लोगों के साथ रह के क्या होगा? एक तो हमारा वक्त बर्बाद होगा, नंबर टू, जैसी कंपनी फिर उसका असर हम पे होता है, फिर हम भी वैसे ही काम और वैसे ही बातें करते रहे। तो ये करने के लिए हिम्मत कहाँ से आएगी? ये करने के लिए हिम्मत आएगी अल्लाह के जिक्र से। इसका ये मतलब नहीं कि हम हमारे उन रिश्तेदारों को, उन दोस्तों को बिल्कुल हम उनसे दुश्मनी कर ले, नहीं, लेकिन थोड़ा तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना होगा अगर वो हमें इतना तकलीफ दे रहे हो, चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहे थे मक्का में? ये मुशरिकीन के सरदार। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप क्या कीजिए, उन लोगों से हट जाइए और अपने काम, अपने मिशन पर पूरा फोकस रखिए। कौन है आपका रब? आयत 9, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी। वो कैसा रब है कि वो मशरिक का भी रब है और मगरिब का भी रब है। क्या मतलब होता है मशरिक और मगरिब? मशरिक मीन्स ईस्ट, मगरिब मीन्स वेस्ट। यानी ये पूरी दुनिया में जो जितने भी डायरेक्शंस है अल्लाह ताला ने बनाए हैं, फिर इस दुनिया में जितने भी शहर है, जितने भी कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, इन सब का रब कौन है? सबका रब अल्लाह है। और अगर वो पूरी कायनात का रब है तो फिर क्या उसके सिवा और कोई इबादत के लायक है? नहीं। इसलिए फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवा। ला का मतलब नहीं, इलाह कोई माबूद। इलाह का मतलब क्या है? वो जो सिर्फ अल्लाह, वही डिजर्व करते हैं कि उन्हीं की इबादत की जाए। तो इलाह वो जो इस काबिल हो कि उसकी इबादत की जाए। तो और कोई भी नहीं इस काबिल जिसकी इबादत की जाए, इल्ला सिवाय हुआ वो। कौन? अल्लाह। तो फिर आप क्या कीजिए? फिर आप फत्तखिज़हू, फिर आप बना लीजिए किसको? अल्लाह को वकीला, अपना कारसाज। अल्लाह ताला किससे फरमा रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे कि ये जो आपके दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, वो तो शिर्क में मुब्तला है, कुफ्र में मुब्तला है। दे आर बिजी इन शिर्क एंड कुफ्र। लेकिन अल्लाह के सिवा तो कोई इबादत के लायक है ही नहीं। तो फिर आप क्या कीजिए? आप अल्लाह को बना लीजिए अपना वकील। वकील का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर छोड़ दीजिए
सारे रिजल्ट्स, सारे मामले। दुनिया में भी आप वकील देखते हो, जो लॉयर होता है, एडवोकेट है, तो कोर्ट में हम नहीं जाकर कोर्ट में जज के सामने डायरेक्टली कुछ बोल सकते, बट मुझे अपना वहां पर वकील नॉमिनेट करना पड़ेगा, उसके पेपर साइन करके उसे ऑथराइज करना है कि आप मेरा मामला जज के सामने पेश कीजिए। अब यहाँ पर तो हमारा वकील कौन बनने को तैयार है? हमारा वकील कौन बनने को तैयार है यहाँ पर पता है? खुद जज जो है, जज ही हमारा वकील बनने को तैयार है। और वो जज कौन है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वही हमारा रब, वही हमारा खालिक, वही हमारा मालिक, और अब वही हमारा वकील भी। जब अल्लाह ताला मेरा वकील बनने के लिए तैयार है और उसके बदले अल्लाह को फीस भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसके बदले अल्लाह को पता है? कुछ भी नहीं चाहिए। बस हम हमारे मामलात अल्लाह के ऊपर सौंप दे और अपने काम करते चले, अल्लाह के हुक्म मानते चले। तो फिर क्या मेरा काम कभी खराब हो सकता है अगर मेरा वकील खुद अल्लाह हो? क्या मेरा काम खराब हो सकता है? कोई चांस ही नहीं। यानी 100% गारंटी है फिर मुझे कि मेरा हर काम कैसा हो जाएगा? 100% फ्रूटफुल, उसका नतीजा बेहतरीन होगा। क्या ये इतना आसान है? हमको कोई ऐसा करने ही नहीं देता। क्या हमको ऐसा कोई करने देता है? 100% अल्लाह के ऊपर भरोसा करके चलो, नहीं। क्योंकि हमारे ऊपर आजमाइश आती है। जब कोई आजमाइश आती है तो कोई ना कोई आ जाता है, कहता है कि अरे तुम चलो, तुम्हारा बच्चा बीमार है, मैं तुमको वो फला जगह पे ले जाती हूँ, आप उनसे धागा क्या तावीज बनवाओ, कुछ वो आपको पढ़ के देंगे। ऐसे घर बैठे बैठे कुछ ठीक नहीं होगा। फिर दूसरी फ्रेंड आएगी, बोलेगी अरे वो फला डॉक्टर के पास चलो, बहुत एक्सपर्ट है, जब मैं गई थी मैं ठीक हो गई थी। हाँ, डॉक्टर के पास जाना सुन्नत है, बिल्कुल जा सकते हैं, इलाज करवाना सुन्नत है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल जब हम रखते हैं तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। और यही प्रॉब्लम मक्का में भी थी। हम पढ़ चुके मक्के के मुशरिक क्या कहते थे कि सिर्फ एक अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? हम तो अल्लाह को भी मानते और साथ साथ में इन बुतों से भी अल्लाह के पास अपनी सिफारिश करवाते हैं। नॉट डन, नॉट डन। अल्लाह ने फरमाया ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई और इस काबिल है ही नहीं। अब दुश्मन तो आएंगे, सताएंगे, तो आप क्या कीजिए? आयत 10, वस्बिर, और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए। किस पर सब्र करना है? अला मा यकूलूना, अला उस पर सब्र करना है, मा जो यकूलूना वो कहते हैं। ये जो मुशरिक जो लोग कहते हैं, शिर्क करने के लिए उकसाते हैं, आपको लालच देते हैं, कभी आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते हैं, तो आप क्या कीजिए? उनकी इन तमाम बातों पर सब्र सब्र कीजिए। सब्र करने का क्या मतलब हुआ फिर? सब्र करने का क्या मतलब हुआ कि आपको उनको ना उल्टा जवाब देना है, ना उन पर गुस्सा करना है, ना भड़कना है, ना चिल्लाना है, ना दुश्मनी मोल लेनी है। तो फिर सब्र करने का मतलब क्या है? आपको जमे रहना है। किस पर जमे रहना है? यू हैव टू बी फर्म फूटेड। किस पर जमे रहना है? तौहीद पर, एक अल्लाह की इबादत पर, इस्लाम पर, और इन लोगों के प्रेशर्स में नहीं आना है। वाहजुरहुम, सब्र के साथ और क्या करना है आपको? वाहजुर, और आप छोड़ दीजिए, हम उनको,
इन लोगों को आप छोड़ दीजिए उनके हाल पर। हिजरत वर्ड है इसमें, इसका मतलब है आप हिजरत कीजिए, थोड़ा सा उन लोग को छोड़ दो और आप उनसे दूर हो जाओ। कैसे होना है दूर? हजरन जमीला। हजरन छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? जमीला, खूबसूरत अंदाज में, ब्यूटिफुली, ग्रेशियसली आप उनसे अलग हो जाइए, दूर हो जाइए। लेकिन कैसे होना है अलग? खूबसूरत अंदाज में। ये सुन्नत तरीका है। किसी से झगड़ा करके नहीं, किसी से अबोला नहीं करना है कि मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, गाली गलौज नहीं, बहस नहीं, बल्कि फिर मुस्कुराकर, जमीला यानी क्या? खूबसूरत अंदाज, यानी मुस्कुराकर, बगैर झगड़ा किए, बगैर फसाद किए, बगैर आंखें बड़ी बड़ी किए, बगैर गुस्सा किए कहना है ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप अपने दीन को फॉलो कीजिए, हमको अपने दीन को फॉलो करने दीजिए। ये क्या है? खूबसूरत हिजरत। क्या हमको आती है ये खूबसूरत हिजरत करना? बहुत मुश्किल है। हमारे सर पे तो क्या सवार होता है? गुस्सा, शैतान की तरफ से। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल सब्र नहीं, किसी भी हाल में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की 13 साल के बाद, लेकिन उससे पहले भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि आपको किसी से भी उलझना नहीं है, किसी को भी दीन में जबरदस्ती नहीं करनी। हाँ, आप कोशिश करें, खूबसूरत कोशिश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात हर रोज लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, शिर्क छोड़ने के लिए बहुत कन्विंस किया। अब देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चाचा थे, कौन? अबू तालिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कोशिश की होगी ना, कि हर रोज अपने चाचा को कन्विंस करने की कोशिश करते होंगे या नहीं करते? और सबसे ज्यादा कोशिश उन्होंने कब की थी बताइए? जब वो चाचा आखिरी वक्त, बिल्कुल मौत की घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर कोशिश की। तो ये क्या है? कि खूबसूरत अंदाज में कोशिश करते रहना है, जमे रहना है, लेकिन लेकिन ये हिजरत कैसी हो? जमीला। वो अबू जहल को भी बताते थे और फिर हट जाते थे, अबू लहब को भी बताते थे फिर हट जाते थे। हम लोग क्या करते हैं? हम हटते नहीं, हम सर पे सवार हो जाते। किसके सर पे सवार हो जाते सना हर रोज? अपने बच्चों के सर पे से। बिल्कुल सही। हमारे बच्चों के साथ हम क्या करते हैं? क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं कि हम जानते हैं हम बहुत देर से आए इस्लाम में, तो हमारी नीयत अच्छी है कि हम हमारे बच्चों को अभी से लाना चाहते हैं। इसके लिए हम उनके सर पे सवार हो जाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, डांट डपट करते हैं। बट हमको उनको टाइम देना पड़ेगा, मोहलत देनी पड़ेगी, वक्त देना पड़ेगा। तो थोड़ा बताएं, फिर थोड़ी हिजरत कर लेना है, फिर थोड़ा रुक जाना है, फिर थोड़ा सब्र, फिर वापस बताएं, फिर रिमाइंडर्स दे, फिर थोड़ा उनको टाइम दे। हर एक को वक्त चाहिए होता है, फिर वो राइट टाइम पे अल्लाह की तरफ से हिदायत भी मिलती। ओके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइनल हिजरत की थी मक्का से मदीना, उस वक्त भी क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से झगड़ा किया था? झगड़ा करके आए थे? नौजुबिल्ला नहीं किया झगड़ा। किसी से मारपीट की? नौजुबिल्ला नहीं की। ना जबानी झगड़ा, ना हाथ से झगड़ा, ना हथियारों से झगड़ा, बल्कि वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से खड़े थे उनके घर के बाहर तलवारें लेकर।
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کی تلواروں کا جواب تلوار سے دیا؟ نہیں. کس سے دیا تلواروں کا جواب؟ صبر سے دیا. اور کیسے کی ہجرت؟ ہجرن جمیلا. اس کی ایک اور مثال آپ دیکھ لیجئے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں. یوسف علیہ السلام کے دشمن کون بن گئے تھے سب سے پہلے؟ ان کے بھائی. ان کے اپنے بھائی، یعنی ان کے اپنی فیملی. لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی پوری زندگی گزری اور پھر جیل میں سے گزرے اور پھر فائنلی اللہ نے ان کو جب گورنر بنا دیا، تب وہ چاہتے تو اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے نا، زبانی بھی کچھ بول ہی سکتے تھے، اپنا غصہ دکھا سکتے تھے. کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ صبر اور ہجرن جمیلا. تو یہ ہجرن جمیلا کیا یہ بہت بڑی ہجرت کا نام ہے یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم کر سکتے ہیں؟ اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ روز ہجرت کر سکتے تو کیسے کر سکتے؟ اس کے کوئی ایگزامپلس دے سکتے ہو آپ لوگ؟ چاند آنٹی بولیے. نیند چھوڑ دی ہم نے دوپہر کی. ویری گڈ. پھر ایک آپ جگہ اگر آواز ہوتی ہے تو ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں وہ چھوڑ کے. ویری گڈ. بہت اچھے دو ایگزامپلس آپ نے دیے کہ دوپہر میں پہلے ہم لوگ سو جاتے تھے، تھوڑا آرام کر لیتے تھے، اب ہم اسی وقت کو قرآن سیکھنے میں لگاتے، زوم پر آ جاتے، ہے نا. رات میں بھی نیند بڑی پیاری تھی، بٹ اب ہم رات کی نیند کو بھی چھوڑ کر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. تو یہ بھی ہماری ہجرت کیسی ہے؟ خوبصورت ہجرت. اب گھر میں ہمارے رشتہ دار تو ہوتے ہیں نا، ہمارے اپنی اولاد ہے، بھائی بہن ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہے، ساس سسر ہے، تو ان کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی انبن ہو سکتی ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو یا دین کے معاملے میں. تو وہاں پر بھی ہم اگر یہ دو رول اپلائی کر لیں، پہلا رول ہے صبر، خاموش ہو جائے اور اپنا کام کرتے رہے، اپنا کام نہیں چھوڑنا. اور دوسرا ہجرن جمیلا، کہ کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی ہم سے جھگڑا کر رہا ہے گھر میں ہی، کوئی ہمیں ڈانٹ رہا ہے، ستا رہا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہ جواب دے، اگر ہو سکے تو کہے ٹھیک ہے، اور پھر آپ وہاں سے ہٹ جائے ان کے سامنے سے. آپ نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے آپ حق پر ہو اور حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. تو کیا ملے گا اس کا بدلہ؟ بتاؤ. حدیث معلوم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث میں فرمایا کہ حق پر ہوتے ہوئے جو شخص جھگڑا کرنا چھوڑ دے تو میں اسے ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، جنت کے بیچوں بیچ سینٹر میں ایک محل. تو پھر ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ اس سے ہم جھگڑا کریں یا ہم اپنے لیے جنت میں محل بناتے چلے؟ واٹ از بیٹر؟ بولیے. آف کورس جنت میں محل، انشاءاللہ. چلے آیت 11. اور اب وہ دشمن کا کیا کریں گے؟ وہ جو ہم سے بھیڑ رہا ہے، یہاں پر جو دشمن تھے وہ شرک پر آمادہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھ کیا کرو؟ آیت 11 میں اللہ نے فرمایا وَذَرْنِي، وہ اور ذرنی، آپ چھوڑ دیجئے مجھ پر. سورہ مدثر میں بھی ایسے ہی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ذرنی ومن خلقت وحیدا. یہاں پر کیا فرمایا؟ وذرنی، اور آپ چھوڑ دیجئے مجھ پر. کس کو چھوڑ دیجئے؟ والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو. ان جھٹلانے والوں کو جو ایمان نہیں لاتے، جو شرک پر جمے ہوئے ہیں، ان کو میرے حوالے چھوڑ. I will take care of them.
उलिन नअमती, कैसे है ये लोग जो झुटलाते हैं इस्लाम को, डिनायर्स। उलिन नअमती, वो नेमतों वाले लोग हैं, उनके पास दुनिया की बड़ी नेमतें हैं। तो वो किस में गुम है? दुनिया की नेमतों में गुम है, उसी में खुश है। वमहिलहुम, और आप मोहलत दीजिए उनको, उनको आप थोड़ा टाइम दो, थोड़ा स्पेस दे दो। कितना? कलीला, थोड़ा सा। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने दो बातें बताई कि उन लोगों का मामला आप मेरे हवाले छोड़ दो और आप उनको थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे है ये लोग? नंबर 1, वो झुटलाते हैं इस्लाम को और आपको भी। नंबर 2, उलिन नअमती। उली का मतलब क्या होता है? आला, जो हम पढ़ते हैं वाले। उली यानी वाले, किस चीज वाले? अन्नाअमती, नेमतों वाले लोग हैं ये। तो ये अपनी दुनिया की लग्जरीज, दुनिया की ऐशो आराम में इतने गुम हैं कि इनको पता ही नहीं कि वो किस चीज को ठुकरा रहे हैं, किस चीज को झुटला रहे। वो इस्लाम को झुटला रहे, अल्लाह को झुटला रहे, अल्लाह के रसूल को झुटला रहे, और वो दुनिया ही में गुम है। एंजॉयमेंट, लग्जरीज, डिजायर्स। तो आप उनका मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। किस पर? अल्लाह। लेकिन आप उनके साथ अभी यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, बहस नहीं, बल्कि आप उनको क्या दीजिए? माहिल हुम में क्या वर्ड मिला आपको? माहिल में मोहलत वर्ड मिला। मोहलत किसको देते हैं हम लोग? मोहलत देने का क्या मतलब हुआ? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? देखिए सूरत मुद्दस्सिर में हमने कितना वाकया पढ़े। एक तो था वलीद बिन मुगीरा का वाकया, जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, उसको भी मोहलत दी। अबू जहल को भी मोहलत मिली, अबू लहब को भी मोहलत मिली, लेकिन क्या वो लोग आए इस्लाम की तरफ? नहीं। फिर उनको कौन हैंडल करेगा? अल्लाह ताला। अल्लाह ने क्या फरमाया था सूरह मुद्दस्सिर में कि उनको सऊदा नाम की पहाड़ी पर चढ़ाएंगे, उनको सकर में भुनेंगे, यानी जहन्नम में उनका ठिकाना होगी। लेकिन खालिद बिन वलीद को जब मोहलत मिली तो वो इस्लाम की तरफ आ गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मोहलत मिली, वो इस्लाम की तरफ आ गए। अबू सुफियान को मोहलत मिली, वो आ गए। हिंदा को मोहलत मिली, वो भी आ गई। तो मोहलत का मतलब क्या है? इसमें दो बातें आती है। नंबर 1, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, और नंबर 2, बल्कि उसके लिए दिल से दुआ करनी है कि अल्लाह, जैसे तूने मुझे हिदायत दी, इसको भी हिदायत दे दे। अब हिदायत का भी हर एक का वक्त मुकर्रर है या नहीं है? बताओ। हम्म? हिदायत भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि नहीं है? बाजी। मगफिरत, माफी भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है या नहीं है? है। और हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, तो तब तक उसको टाइम देना पड़ेगा। देखिए जैसे दुनिया में हम लोग हमारे बच्चों को हम मोहलत देते या नहीं देते? देते हैं। हमारे बच्चे अगर मार्क्स कम आए तो हम उनको क्या कहते हैं कि अभी नेक्स्ट एग्जाम में क्या करना बेटा? और मेहनत करना, एंड प्रूव योर सेल्फ, गो। ठीक है। लेकिन दूसरों के बच्चों को हम नहीं दे सकते मोहलत। किसी और को हम मोहलत देने में बहुत कंजूस है। दूसरों को हम बहुत जल्दी जज करना शुरू कर देते हैं। करते हैं नहीं करते? देखिए आप लोग भी किसी को बुलाते हो ना, ये लिंक शेयर करते हो कि आ जाइए कुरान क्लास में,
तो अब उनको क्या देना पड़ेगा, थोड़ी मोहलत देनी पड़ेगी कि आज नहीं आए कोई बात नहीं, फिर आज के आज फोन करके झगड़ा नहीं करना है उनसे। आप नॉर्मली फोन कर सकते हो, थोड़ी बात कीजिए, फिर पूछे क्या हुआ, मैंने आपको लिंक दी थी आप आए नहीं, कोई बात नहीं, कल फिर से होगी क्लास, आप देखिए कोशिश करके आ जाए। या आप ये कह सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, इफ आई कैन हेल्प यू आउट, फिर आप अल्लाह से दुआ करें। ये क्या है, किसी को मोहलत देना, खूबसूरत मोहलत देना। खूबसूरत मोहलत देने वाले के पास क्या होना जरूरी है, खूबसूरत मोहलत देने के वाले के पास क्या होना जरूरी है? नंबर सबर। वन, हाँ नंबर वन सबर होना जरूरी है। और नंबर टू, हिकमत होना जरूरी। आप हमारे पास वो विजडम, वो हिकमत नहीं है। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के साथ क्या किया था, पढ़े ना हम, क्या किया था? सिर्फ उससे, उसके भाई से सिर्फ इतना पूछा, खालिद कैसा है, उस वो कहाँ है, दैट्स इट। ये क्या था, ये भी मोहलत दी। अभी हिकमत क्या थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस्लाम का दुश्मन खालिद कहाँ है, ये हिकमत। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर अच्छा हुआ खालिद मेरे सामने नहीं आया, अगर वो मेरे सामने आता तो फिर मैं उसे काट के रख देता, ऐसे भी नहीं बोले। सुभान अल्लाह। डू वी लर्न हिकमत फ्रॉम दिस? कुछ सीखने मिलता है हमको, या हम सिर्फ सुनते जा रहे? ठीक है, आयत 12, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन बेशक लदैना हमारे पास, इन्ना बेशक लदैना हमारे पास, अंकालव, अंकालव क्या है पता है? अंकालव बेड़ियां, सकलिया। हाथ में क्या पहनाते हैं जब चोर को पकड़ के लेके जाते हैं, क्रिमिनल को? तो हथकड़ियाँ। हथकड़िया, बेड़िया, हैंडकफ्स। अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमारे पास क्या है, ये सकलियां, ये हथकड़ियां, चाहे वो हाथ में बांधने के लिए सकलियां हो या पैरों में या गर्दन में। किसके लिए होती है ये? क्रिमिनल्स के लिए। तो आप, अल्लाह ने फरमाया ना, आप छोड़ दीजिए उनको मुझ पर। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, हर एक को मौका देते हैं, टाइम देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी दीजिए टाइम। अगर उतनी मोहलत देने के बाद भी वो ना सुधरे, ना आए, तो फिर हमारे पास उनके लिए क्या है? हथकड़िया, बेड़िया, व जहीमा, व और क्या है? जहीमा, भड़कती हुई आग, जहन्नम की आग। तो अब कौन डिसाइड करेगा कि किसे मोहल्लत मिले और किसे जहन्नम मिले? ये सब कुछ अल्लाह ताला ही फैसला करते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को उठाकर जहन्नम में नहीं डालते। इस सूरह से हमें क्या समझ आया कि अल्लाह ताला हर एक को मौका देते हैं, हिदायत का मौका, सुधरने का मौका। नबियों को भेजते हैं, रसूलों को भेजते हैं, किताब नाजिल फरमाते हैं, उसके बाद मोहल्लत भी देते हैं, स्पेस भी देते हैं। कितने अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला हर एक को चांस देते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं। उसके बाद न आए तो आखिर में उसके लिए है जहन्नम की भड़कती आग। अल्लाह अकबर। और हम क्या करते हैं आज? हम तो बहुत आराम से बैठे बैठे किसी को जहन्नमी करार दे देते हैं दुनिया में। यहाँ तक कि कोई बड़े बड़े आलिमों को भी हम कहते हैं कि वो तो जहन्नमी है, ऐसी बातें करते हैं। हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? क्या जहन्नम मेरी है, मैंने बनाई जहन्नम? या जन्नत मेरी है? क्या फैसला मेरा है? क्या मैं रब हूं? क्या मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ?
बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, नऊज़ बिल्लाह, नस्तगफिरुल्लाह। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम ऐसी बातें करें। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला है कि अल्लाह किसको कितनी मोहलत दे, और फिर अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन जहन्नम के लायक है और कौन जन्नत के लायक। जन्नत उसकी, जहन्नम उसकी, तो फैसला भी उसका। और अल्लाह का फैसला कभी भी क्या जालिमाना फैसला होता है या हिकमत पर बेस्ड होता है, बताइए। कैसा होता है अल्लाह का फैसला? हिकमत का। हिकमत का। और बहुत मौके देते हैं अल्लाह ताला। जरा अपने आप को रख के देख लीजिए, है ना। हमें हमको पता है ना, हम मैं कैसी हूँ मुझे मालूम है। तो अपनी जिंदगी पे गौर करें हम, कि अल्लाह का कितना शुक्र है कि कैसे कैसे गुनाहों पे उसने अभी तक मुझे पकड़ा नहीं है। और अल्लाह ने मुझे कितनी बार मोहलत दी। कितना मेरा अल्लाह रहीम है, करीम है। इतने गुनाहों के बावजूद भी वो मेरा रिस्क मुझ तक पहुंचा रहा है, और अब मुझे कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। फिर हम कैसे किसी को मौका नहीं देते, हम क्यों किसी के लिए दुआएं नहीं करते। चले इंशाल्लाह आज से हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के लिए दुआ की थी, एक अबू जहल या तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो क्या इस सुन्नत पे हमने अमल किया? क्या हम दुआएं करते किसी के लिए? अपनी औलाद, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, कि अल्लाह सबको हिदायत दे दे। तो एक एक का नाम लेकर दुआएं करना है हमने इंशाल्लाह। चले आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 13। क्या है उस जहन्नम में? व तामन, और खाना उस जहन्नम में। व्हाट विल बी द फूड ऑफ हेल फायर? रा गुस्सत्यों, पसने वाला, कांटे वाला, चोकिंग फूड। हम पढ़ चुके हैं ना कि सूरत अल वाक़िया में हम पढ़ रहे हैं ना कि कौन से दरख्त होंगे और क्या होगी उनकी मेहमानी जहन्नमियों की? कांटेदार जक्कूम, बदबूदार जक्कूम। वो कांटे मिलेंगे खाने को। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने फरमाया जहन्नम की भड़कती हुई आग में ऐसा कांटेदार खाना होगा जो गले में फंस जाए। रा गुस्सतियों का मतलब यही होता है, गले में फंसने वाला। कभी फिश खाते वक्त फिश का कांटा गले में फंसता है? कभी न कभी सबके फंसा होगा, है ना। एक बार तो हुआ ही होगा। तो हमको पता है अगर वो कांटा यहाँ पे फंस जाए तो उसके बाद आप नेक्स्ट निवाला खा सकते हो? नहीं खा सकते, बहुत मुश्किल है। जब तक आप वो एक कांटा ना निकालो तब तक आप उसके बाद खाना नहीं खा सकते। इनका सारा जहन्नमियों का खाना कांटे ही होगा, और वो फंसेगा, चोक होगा, फिर भी खाएंगे, खिलाया जाएगा, ठूसा जाएगा। अल्लाह अकबर। और उसके बाद अजाब कैसा होगा? वह अजाबन अलीमा, अजाब दर्दनाक अजाब, वेरी पेनफुल पनिशमेंट। अब एक कांटा चुभना ही अपने आप में इतना दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है। कहाँ सिर्फ खाने को कांटे ही कांटे मिले, तो अंदर भी जा रहे कांटे और बाहर भी है दर्दनाक, जलने वाला, चुभने वाला, कांटेदार अजाब। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। ये सब आखिरत की बात हो रही है। तो आखिरत की शुरुआत होगी कयामत के दिन से। आयत 14 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यौम, जिस दिन। अब कयामत के दिन का जिक्र है। यौम, जिस दिन। तरजुफुल अर्दु, जिस दिन कांपेगी। रजफा वर्ड है, रजफा का मतलब होता है टू शेक। डर के मारे
कांपना, शिवरिंग। तो जिस दिन कांपेगी जमीन, अर्थक्वेक होगा पूरे जमीन पर, ऐसे हिल रही होगी जमीन नॉन स्टॉप। वल जिबालू, और सारे के सारे पहाड़, वकानत, और होंगे, अल जिबालू, सारे पहाड़, कतीबम महीला, कतीबम चूरा चूरा, रेत के टीले बन जाएंगे। आज पहाड़ कैसे खड़े, बिल्कुल सॉलिड रॉक्स। कयामत के दिन वो सारे पहाड़ चूरा चूरा, रेजा रेजा, भुर भुरे होकर, महीला, बिखर जाएंगे। सॉलिड है तो वो ऊपर जमे हुए, जैसे वो भूरा भूरा होंगे तो फिर वो बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे। और जैसे ही पहाड़ फैलेंगे तो जमीन हिलने लगेगी, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया था तब जमीन हिलने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने उसमें क्या ठोक दिए थे, पहाड़। पहाड़ ठोक दिए थे। तो फिर वो कैसी हो गई थी जमीन, बिल्कुल स्टेबल हो गई थी, है ना। अल्लाह अकबर। तो ये कयामत के दिन का मंजर होगा। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि ये कयामत के बारे में तुमको कौन बताता है। कयामत का जिक्र रोज न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ चैनल्स पर आता है, नहीं आता। स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में क्या आपने कयामत के बारे में पढ़े हो, नहीं पढ़े। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमको ये कयामत के बारे में कौन बताता है, मैं तुम्हें बताता। इन्ना, बेशक हम, अरसलना, भेजा हमने, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, रसूलन, एक रसूल। अल्लाह ताला फरमाते ये गैब की बातें, ये गैब की बातें कोई नहीं बता सकता तुम्हें सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। इसलिए हमने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा, अपना मैसेंजर भेजा। कैसा है वो मैसेंजर, शाहिदन अलैकुम, बतौर गवाह, शाहिदन एज अ विटनेस, अलैकुम, तुम पर, तुम सब पर हमने एक रसूल को गवाह, विटनेस बनाकर भेजा। इसका जिक्र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कमा, क यानी जैसे, माँ के, जैसे के, अरसलना, भेजा था हमने, इला फिरऔन, फिरऔन की तरफ, रसूला, एक रसूल। किसको भेजा था फिरौन की तरफ, एक रसूल, मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे फिरौन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, वैसे ही हमने तुम्हारी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा एज अ रसूल। और ये रसूल ही तुम्हें खबरदार करते हैं। सूरह मुद्दस्सिर में हमने पढ़े कुम फअंज़िर। वैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा फिरौन के दरबार में कि आप दोनों जाएं और उसे खबरदार कीजिए, एक अल्लाह की तरफ बुलाइए। तो वैसे ही, क्योंकि देखिए ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार क्यों किया, क्यों किया था। क्योंकि वो बनी इसराइल से क्यों नहीं थे। हाँ, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, क्योंकि वो बनी इसराइल से आए थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से आए, तो इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मूसा को मानते हो, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मानते। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे इंशाल्लाह, और फिर आयत 15 ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कयामत की तैयारी करने वाला बना दे। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना